Hello, once again, welcome you all on our YouTube channel, that is Kiran Kolte Biology Academy. Myself Kiran Suresh Kolte. I heartily welcome you all on this today's lecture. So in the morning only, one student sent me one request ki sir take a lecture on a control and coordination. That's why I brought one additional lecture on the chapter, first topic of the chapter, control and coordination. So in this today's lecture we are going to see uh, first introductory part of this chapter, control and coordination, that is the nervous system in hydra and nervous system in planaria and the nervous tissue. So these three topics we are going to revise through the important MCQ in this today's lecture. So this already you are knowing that we already started a crash course for the upcoming exams like NEET, MSTCET and HSC board 2021 and 2022. इज क्लियर? चलो, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट विथ आवर लेक्चर. जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर गेटिंग न्यू वीडियोज फॉर अपकमिंग एग्जाम्स एंड विदाउट फॉरगेट, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन फॉर गेटिंग अ नोटिफिकेशन. तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड सी द एंटायर लेक्चर एंड शेयर आवर वीडियो इन योर फ्रेंड सर्कल. शेयर करने को ना भूलिए, डू लाइक and put your valuable comments also. Chalo, best of luck all my dear students. Now we are going to start with control coordination through the multiple choice question. The first MCQ is on your screen. Plant shows dash dash type of movement. Now see here, the plants are showing a two type of movements. तो movements plant में दो तरह की होती है. The movements dependent on growth and some movements they are independent. Only for 1 minute. Some movements are dependent on growth and some movements are independent. Independent movements, for example, the movements shown by the leaves of touch me not plant, that is the example है Mimosa pudica. Mimosa pudica, touch me not a plant. इसका साइंटिफिक नेम का है माइमोसा पुडिका. तो लीव्स हैज गेट अ fall down, means not fall down from the plants, they has get a bend. The petiole also has get a bend down, leaves also has get bend down. So the movement shown by the leaves of Mimosa pudica, that is called as thigmotropic movement. तो इसको हम क्या कहते हैं? थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट. दीज आर द मूवमेंट्स, दे आर इन रिस्पॉन्स टू, ये जो मूवमेंट होती है ये क्या किसके रिस्पॉन्स से होती है? These movements has get occur in response to touch. And the other movements, those who are dependent on growth, for example phototropic movements, those movements are occur in response to light, they are called as phototropic movement. For example stem always grow towards the light and a root always grow away from light. दूसरा क्या है? geotropic movement, the roots are always grow towards gravity. नेक्स्ट क्या है? हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, द रूट्स ऑलवेज ग्रो टुवर्ड्स द वाटर, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट. नेक्स्ट क्या है? थर्मोट्रॉपिक मूवमेंट, द मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर. एंड द लास्ट वन दैट इज कॉल्ड एज कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, द movement of pollen tube towards the particular chemical stimulus released by synergid. तो इन रिस्पॉन्स टू केमिकल जो मूवमेंट होती है दैट इज कॉल्ड एज कीमोट्रॉपिक मूवमेंट. तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट सीन इन द प्लांट. तो हमको पूछा है प्लांट शोज डाइजेस्ट टाइप ऑफ मूवमेंट, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, थर्मोट्रॉपिक मूवमेंट. तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस. इज क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेन इज एब्सेंट? नीचे में से कौन से एनिमल में ब्रेन एब्सेंट होता है? हाइड्रा, जेलिकोम, अर्थवर्म या बोथ ए एंड बी? मोस्टली जो हमारे सिलेबस में जो फर्स्ट दिया है फाइलम पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा एग्जांपल है साइकॉन. तो इन साइकॉन नर्वस सिस्टम इज ऑल टुगेदर एब्सेंट, ईच एंड एवरी सेल. तो साइकॉन जो स्पंज होते हैं उनमें टिश्यू भी एब्सेंट होते हैं. तो ईच एंड एवरी सेल इज गोइंग टू गिव अ रिस्पॉन्स. हर एक सेल क्या करती है? हर एक सेल रिस्पॉन्स करती है टू द
स्टिमुलाई टू स्टिमुलाई, स्टिमुलाई क्या होता है, चेंज इन द सराउंडिंग एनवायरमेंट, इज क्लियर। तो मोस्टली इन द लोअर ऑर्गेनिजम्स, लोअर ऑर्गेनिज्म में हमको क्या दिखाई देता है, इन अ लोअर ऑर्गेनिज्म विल नॉट गेट एनी ब्रेन, ब्रेन कहाँ दिखाई देता है, ब्रेन इज अ हाईली इवॉल्व्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन जो ऑर्गन है, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ अ नर्वस सिस्टम, इट इज अ सीन इन अ हाईली इवॉल्व्ड एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल मैमल में हमको ब्रेन दिखाई देता है। फ्रॉम द फाइलम आर्थ्रोपोडा वी कैन सी द ब्रेन, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, अर्थवर्म ले लो, आर्थ्रोपोडा का कॉकरोच ले लो, तो उधर से जो मैमल तक जो है सारे क्लास, तो उसमें हमको फाइलम और क्लास, उसमें हमको क्या दिखाई देता है, ब्रेन दिखाई देता है, इज क्लियर। हाइड्रा एंड जेलिकोम, तो दीज आर फ्रॉम द फाइलम निडारिया, तो इनको हम क्या कहते हैं, निडारियंस कहते हैं। तो इन दिस member of a nidarian, hydra and jellycomb, the brain is all together absent. इसमें कौन सा सिस्टम होता है, तो these animals are showing diffuse nervous system। कौन सी नर्वस सिस्टम होती है इनमें, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम इज seen in hydra and jellycomb। तो this hydra is provided with a two nerve net। So for example, if this is the body of hydra, these are the tentacles, those are present around the mouth, and body कैसी है, body is a elongated tube like, तो ये coelenterata है, it is connected to the substratum by means of an holdfast। तो the large number of nerve cells, they are going to form a complex network, a complex mesh like structures of a neuron। Large number of neurons are present around the mouth as well as around the pedal। तो close to the holdfast and close to the mouth, large number of nerve cells are present, and here all these nerve cells with their synapse, they are going to form a nerve net। So such a two nerve nets are present in the body of hydra। Here there is no any differentiation of these neurons as get not differentiated into sensory, motor and mixed type of neuron, is it clear। तो in a hydra and jellycomb, brain is absent, whereas in the earthworm from the phylum annelida, arthropoda का member ले लो, cockroach ले लो, honey bee ले लो, इसमें क्या होता है, brain होता है, is it clear। तो brain is present in the earthworm but it is absent in a hydra and jellyfish। चलो, in a hydra more neurons are present at, just now I told you hydra में ज्यादा neurons का होते हैं, they are present around mouth and pedal यानी close to the holdfast and mouth, where the tentacles are present in a circular manner, they has get arranged around the mouth, is it clear। तो around the mouth and pedal large number of neuron or nerve cells are present in the body of hydra, is it clear। चलो next one, VNC stands for, this is the very important MCQ, VNC। so if you see the planaria, flatworm from the phylum Platyhelminthes, flatworm में क्या होता है, the nervous system, central nervous system is present। कौन सा nervous system है, central nervous system। the brain is present, the nervous system is a ventral to that of the body, the brain is a inverted U shape, brain कैसा है, inverted U shape, that is called as cephalic or cerebral ganglion। now this inverted U shape brain, from the both these are two cephalic ganglion towards the ventral side, a ventral nerve cord has get arise। now these two nerve cord, they are running parallel to each other and they are present towards the ventral side, and both these ventral nerve cord, they are connected with each other। ये जो दो nerve cord है, they are connected with each other by means of a lateral nerves और commissure nerve। इनको हम क्या कहते हैं, lateral nerve कहते हैं, और commissure nerves आकर they are going to form a ladder like a structure। तो ये कैसे structure बना रहा है, they are going to form a ladder like a structure। तो this is a inverted U shape brain which is present in the head region। तो ये है head region and here the eyes are present, is it clear। and these are the two ventral nerve cord, VNC stand for what, ventral nerve cord। इसके ऊपर डायग्राम भी आ सकता है एग्जाम में, स्केच एंड लेबल नर्वस सिस्टम ऑफ प्लानेरिया और फ्रॉम फाइलम प्लैटीहेल्मिंथस। तो ये किसका नर्वस सिस्टम है, दिस इज द नर्वस सिस्टम ऑफ
फ्लैट वर्म, फ्लैट वर्म में कैसा नर्वस, दिस इज द प्रिमिटिव टाइप ऑफ ब्रेन, फ्लैट वर्म इज शोइंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ ब्रेन, ये क्या है, प्रिमिटिव ब्रेन है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज शोइंग प्रिमिटिव ब्रेन, तो करेक्ट आंसर आएगा फ्लैट वर्म, नहीं तो प्लानेरिया। तो वीएनसी का फुल फॉर्म क्या है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, इज क्लियर। ये लैटरल नर्व, इसको कमीशर नर्व भी कहते हैं, इसके ऊपर भी एमसीक्यू आ सकता है। लैटरल नर्व्स आर आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, कमीशर नर्व्स, दे आर फॉर्मिंग अ लैडर लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए तो इसके ऊपर 1 मार्क का वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ सकता है। चलो आगे चलते हैं। इन अ प्लानेरिया ब्रेन इज डैश डैश शेप, जस्ट नाउ आई हैव शोन यू। तो प्लानेरिया में जो ये ब्रेन है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, सिफेलिक गैंग्लियन। गैंग्लियन क्या रहता है मेरे प्यारे बच्चों, गैंग्लियन इज द मास ऑफ अ नर्व सेल, न्यूरॉन का जो मास रहता है इसको हम कहते हैं गैंग्लियन। तो ये जो ब्रेन है सिफेलिक गैंग्लियन, जिसको नाम दिया हमने, इसका शेप क्या है, इट इज अ स्ट्रेट यू शेप और इन्वर्टेड एल शेप और स्ट्रेट सी शेप और इन्वर्टेड यू शेप। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, करेक्ट आंसर इज अ इन्वर्टेड यू शेप। तो द brain of planaria is a inverted U shape, and from these 2 cephalic ganglia 9 nerves has get nerve plexus has get arise 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 nerve plexus has get arise from each ganglia, इज क्लियर। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन, डैश डैश प्रोड्यूसेस माइलिन शीथ अराउंड मेडुलेटेड नर्व फाइबर इन पीएनएस। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन पीएनएस पूछा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पीएनएस का फुल फॉर्म हमको पता होना चाहिए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम इन मैमल्स और इन ह्यूमन बीइंग, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट और डिवीजन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। पीएनएस को क्या कहते हैं, दोज नर्व्स as get arise from the CNS, brain and spinal cord, they are called as a peripheral nervous system. For example, cranial nerves and spinal nerves. तो myelin sheath जो होता है, myelin sheath, it is a present around a medullated or a myelinated nerve fiber. तो ये कौन सीक्रेट करता है, इन अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, शॉन सेल, सैटेलाइट सेल, एपेंडाइमल सेल, नन ऑफ दिस। देखो तो ग्लियल सेल जो होते हैं, ग्लियल सेल, they are called as a supporting or packaging cell. Nervous tissue is made up of 2 type of cells, neurons, nerve cell, and second क्या है, glial cell. Glial cells are also called as neuroglial cell. तो why they are called as glia, because they are, इसका मतलब क्या है, glue, they are going to act as a packaging material. तो ये पैकेजिंग का काम करते हैं, therefore they are called as a glial cell. Now these glial cells, they are divided into 2 categories. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कुछ ग्लियल सेल्स होते हैं एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कुछ ग्लियल सेल होते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट सैटेलाइट सेल एंड दूसरे क्या है, शॉन सेल। शॉन सेल एंड सैटेलाइट सेल आर द 2 मेन टाइप ऑफ ग्लियल सेल प्रेजेंट इन अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें से ये जो शॉन सेल होते हैं, शॉन सेल्स, दे आर गोइंग टू सीक्रेट अ माइलिन शीथ। माइलिन शीथ, ये माइलिन शीथ किसका बना हुआ रहता है, दिस माइलिन शीथ is made up of, ये किससे बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ फैट प्लस प्रोटीन, इट इज मेड अप ऑफ फैट प्लस प्रोटीन, इज क्लियर। तो दोज नर्व फाइबर आर प्रोवाइडेड विद द माइलिन शीथ, दे आर कॉल्ड एज माइलिनेटेड नर्व फाइबर और मेडुलेटेड नर्व फाइबर। तो सैटेलाइट क्या है, सैटेलाइट सेल, दे आर गोइंग टू प्रोवाइड ए सपोर्ट, तो दीज आर द सपोर्टिंग सेल्स। एपेंडाइमल सेल कहाँ होते हैं, एपेंडाइमल सेल्स, दे आर प्रेजेंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दे आर प्रेजेंट इन सेंट्रल कैनल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड आल्सो। तो एपेंडाइमल सेल, they are going to line form the inner lining of a central canal of a spinal cord as well as ventricles of brain, where they are mainly concerned with the secretion of cerebrospinal fluid, cerebrospinal fluid, is clear। चलो आगे चलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन, डैश डैश आर डिराइव फ्रॉम मोनोसाइट एंड एक्ट एज अ मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस क्या होते हैं, मैक्रोफेजेस आर द वॉन्डरिंग अमीबॉइड फैगोसाइटिक डब्ल्यूबीसी होते हैं। तो दीज आर द फैगोसाइटिक सेल्स, दोज वर गेट डिराइव फ्रॉम डब्ल्यूबीसी। तो मोनोसाइट क्या है, मोनोसाइट आर द स्पेशल टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी क्या है, मोनोसाइट।
तो ऐसे कौन से सेल हैं जो WBC मोनोसाइट से डिराइव होते हैं एंड दे आर गोइंग टू एक्ट एज अ फैगोसाइटिक सेल और मैक्रोफेजेस, दे आर गोइंग टू engulf of pathogens, फॉरेन से बॉडीज और फॉरेन मटेरियल एज वेल एज डेड सेल्स। तो ऐसे कौन से सेल हैं? एपेंडाइमल है क्या? एपेंडाइमल का मैंने आपको पता है, एपेंडाइमल आर द कॉलमनर सेल्स, दे आर गोइंग टू सिक्रीट व्हाट? CSF। शॉन सेल क्या करते हैं? दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस माइलिन शीथ। एस्ट्रोसाइट क्या करते हैं? दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस न्यूरोट्रांसमीटर। एंड माइक्रोग्लिया। करेक्ट आंसर क्या है? माइक्रोग्लियल सेल्स। तो दीज आर माइक्रोग्लियल सेल्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज, इनका और एक नाम क्या है? दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेन मैक्रोफेजेस। इनका और एक नाम क्या है? ब्रेन मैक्रोफेजेस। इज इट क्लियर? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। इज इट क्लियर? चलो आगे चलते हैं। डैश डैश आर स्टार शेप ग्लियल सेल। कौन से स्टार शेप ग्लियल सेल होते हैं? स्टार शेप यानी लाइक दिस। Which of the following cells are having a star shape structure? ये ऐसे कौन से होंगे? एपेंडाइमल सेल क्या होते हैं? कॉलमनर होते हैं। शॉन सेल ये क्या होते हैं? इलोंगेटेड होते हैं। एस्ट्रोसाइट एंड माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लियल सेल छोटे होते हैं। वो कैसे होते हैं? दे आर स्मॉल इन साइज एंड दे आर ऑल्सो प्रोवाइडेड विथ आउटरोस, बट दे आर नॉट लुक लाइक टू दैट ऑफ स्टार शेप। तो ये है माइक्रोग्लियल सेल्स। एस्ट्रोसाइट, एस्ट्रो मीन्स व्हाट? एस्टर। एस्टर यानी क्या है? स्टार। एंड साइट मीन्स व्हाट? सेल। तो एस्ट्रोसाइट्स दोज हु आर गोइंग टू एक्ट एज ब्लड ब्रेन ब्लड बैरियर, they are going to help in a blood brain barrier, they help in a transmission of electrical impulse, also they help in a production of neurotransmitter। तो ये कौन से सेल होते हैं? एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट आर द स्टार शेप सेल, एस्टर लाइक सेल्स। CSF is secreted by cerebrospinal fluid which is near about 120 ml in a normal adult person. How much cerebrospinal fluid is present in the ventricles of a normal adult person? तो 120 ml, 100 to 120 ml cerebrospinal fluid is present. It is a alkaline fluid. ये क्या होता है? It is a alkaline fluid which is secreted by एपेंडाइमल सेल। इसका आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एपेंडाइमल सेल। एंड अलोंग विद द एपेंडाइमल सेल और कौन सीक्रेट करता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड? द एंटेरियर एंड पोस्टेरियर कोरोइड प्लेक्सस। The choroid plexus is also going to secrete cerebrospinal fluid. Is it clear? चलो आगे चलते हैं। Which of the following is act as a nerve cell? नीचे में से कौन सा नर्व सेल का काम? Which of the following is act as nerve cell? एपेंडाइमल सेल, शॉन सेल, एस्ट्रोसाइट, none of these। क्या आंसर आएगा? नर्व सेल। What is the difference between nerve cell and glial cells? Nerve cells are nervous in nature. Nerve cell क्या होते हैं? They are nervous in nature. Whereas glial cell क्या होते हैं? Glial cells they are protective, they are supporting, they are going to help in a packaging, they are going to provide a nourishment. Is it clear? And they are going to perform sometime a phagocytic function also. By performing phagocytic function they are going to provide a protection. So glial cells are non-nervous in nature. They are non-nervous means only nerve cells they are going to carry impulse. nerve cell क्या करते हैं? impulse को लेके चलते हैं। whereas the glial cells they are never carry impulse. ये कभी इम्पल्स को लेके चलने वाले नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या है? नन ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्ट एज नर्व सेल? तो ये क्या है? नॉन नर्वस सेल है। ये क्या है? सारे नॉन नर्वस सेल्स है। कौन से? नॉन नर्वस सेल्स। चलो आगे चलते हैं। आई थिंक दिस हैज गेट अ डबल। चलो आगे चलते हैं। हाँ, बिफोर गोइंग टू कंटिन्यू विद द रिमेनिंग MCQ, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब आवर चैनल
tell your friends also to come and join on our YouTube channel where we started the crash course for the upcoming exams like MST CET, HSC board 2021-2022 and NEET 2021 and 2022. Tell your friends, do like, शेयर करो अपने वीडियो की लिंक, लाइक शेयर एंड इंपॉर्टेंट थिंग सब्सक्राइब आवर चैनल and then hit the bell icon for getting a notification. And always during this pandemic situation, be at home, stay safe and always wear mask, protect yourself from COVID-19. Chalo, next one. Dash produces a myelin sheath around a mediated nerve fiber in central nervous system. सेंटर अभी हमने देखा था पीएनएस में कौन माइलिन शीथ प्रोड्यूस करता है, पीएनएस में शॉन सेल माइलिन शीथ प्रोड्यूस करती है. तो सीएनएस में who is going to produce a myelin sheath around a mediated nerve fiber? Astrocyte, satellite cell, ependymal cell, oligodendrocyte. एस्ट्रोसाइट के बारे में आपको मैंने बताया था, सैटेलाइट सेल के बारे में आपको मैंने बताया था, एपेंडाइमल सेल के बारे में आपको बताया था. तो इसके पूरे फंक्शन मैंने ऑलरेडी बता दिए इन द प्रीवियस एमसीक्यू. तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑलिगोडेंड्रोसाइट. ऑलिगोडेंड्रोसाइट, दीज आर द सेल्स, दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ माइलिन शीथ इन अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो जो न्यूर फाइबर सीएनएस का पार्ट है यानी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का, तो उनके एक्सॉन के अराउंड माइलिन शीथ कौन प्रोड्यूस करता है? तो ऑलिगोडेंड्रोसाइट. इज इट क्लियर? चलो, स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज इनसाइड व्हाइट मैटर ऑफ ब्रेन, दे आर कॉल्ड एज. तो हमको पता है कि जो हमारा ब्रेन है, तो द पेरिफेरल पार्ट ऑफ ब्रेन दैट इज कॉल्ड एज सेरेब्रल कॉर्टेक्स और इट इज कॉल्ड एज ग्रे मैटर. यानी बाहर की तरफ क्या है? ग्रे मैटर है. व्हाइट इज ग्रे इन अ कलर. तो बिकॉज इट कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ साइटोन. तो बहुत सारे जो न्यूरॉन्स है उसके जो साइटोन होते हैं वो कहाँ होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द ग्रे मैटर, देयरफॉर इट अपीयर ग्रे इन कलर. whereas the nerve fiber, they are present deep inside in the brain. So that is called as what? White matter. Why it is called as white matter? Because these nerve fiber, they are covered by means of an myelin sheath. तो myelin sheath किससे बना हुआ है? फैट से. तो therefore it is called as white matter. और बाहर का जो है वो क्या है? ग्रे मैटर है. But sometime the masses of gray matter at some places the gray matter has get deeply embedded inside in the white matter. The masses of gray matter, those who are deeply present in a white matter, they are called as what? Gray nuclei, white masses, basal nuclei, या none of these. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? They are called as basal nuclei. So these basal nuclei, they are mainly concerned with the muscle tone. They are going to control a muscle tone. Basal nuclei. Is it clear? चलो, Which of the following is the afferent process? प्रोसेस यानी क्या? आउटग्रोथ होती है. प्रोसेस यानी क्या है? आउटग्रोथ. तो देखो ये हमने 11वीं में पढ़ा है एनिमल टिश्यू में, एंड इन दिस चैप्टर ऑल्सो वी हैड सीन. तो नर्व सेल न्यूरॉन, इट इज प्रोवाइडेड विद टू टाइप ऑफ आउटग्रोथ. दो तरह की आउटग्रोथ होती है. दोज आउटग्रोथ आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द साइटोन. साइटोन क्या होता है? साइटोन इज द स्ट्रक्चर वेयर द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. इसको हमने क्या कहा है? साइटोन. एंड साइटोन के ऊपर दो तरह की आउटग्रोथ होती है. छोटी आउटग्रोथ, दोज आर शोइंग अ प्रोफ्यूज ब्रांचिंग एंड क्लोजली एसोसिएटेड, दे आर कॉल्ड एज डेंड्रॉन. और एक क्या होता है? बड़ा आउटग्रोथ होता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्सॉन. द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन आर कॉल्ड एज व्हाट? टीलोडेंड्राइट. इज क्लियर? नाउ दिस इज द एक्सॉन. ये एक्सॉन है, इमेजिन करो ये क्या है? हमारा एक्सॉन है. एक्सॉन क्या है? एक्सॉन इज ओनली वन इन नंबर एंड इट इज अ लॉन्ग आउटग्रोथ. तो जो लंबी आउटग्रोथ होती है दैट इज कॉल्ड एज एक्सॉन. तो डेंड्रॉन क्या होते हैं? डेंड्रॉन आर द शॉर्ट प्रोसेसेस. ये क्या है? शॉर्ट प्रोसेस. और एक्सॉन क्या है? लॉन्ग प्रोसेस है. इज क्लियर? डेंड्रॉन इज गोइंग टू ब्रिंग द इंपल्स टुवर्ड्स द साइटोन. तो ये लेके आ रही है जो प्रोसेस यानी आउटग्रोथ इंपल्स को लेके आ रही है, इसको हम क्या कहते हैं? एफरेंट. और एक्सॉन क्या कर रहा है? उस इंपल्स को साइटोन से दूर लेके जा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इफरेंट प्रोसेस. तो एक्सॉन क्या है? इफरेंट प्रोसेस है. और हमारा डेंड्रॉन क्या है? डेंड्रॉन इज द एफरेंट प्रोसेस. तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? डेंड्रॉन. डेंड्रॉन इज द एफरेंट प्रोसेस. एक्सॉन, एक्सॉन इन लॉ किसको कहते हैं? द नॉब लाइक अ स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द सेल बॉडी वेयर द
Axon is connected with the cyton, that is called as axon hillock. चलो आगे चलते हैं. Nissls granules. तो Nissls granules क्या होते हैं? Nissls granules, they are made up of riboprotein structures. These are the riboprotein component or particles. They are present inside in the neuroplasm. Neuroplasm हम किसको कहते हैं? Neuroplasm. The cytoplasm of a nerve cell is called as neuroplasm. So these are Nissls granules. They are mainly concerned with the production of neurotransmitter. They are mainly concerned with the production of neurotransmitter. Is it clear? So these are made up of riboprotein particles. तो ये जो riboprotein particles हैं, they are present in the neuroplasm of a cyton. They are altogether absent in the axon. Axon का जो cytoplasm होता है, इसको हम क्या कहते हैं? Exoplasm. तो it is absent in exoplasm. ये exoplasm में absent होता है क्या? या करेक्ट. राइबोप्रोटीन कंपोनेंट है क्या? है. हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर है. तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? Nissls granules are all of these. Is it clear? चलो, these are the darkly stained bead-like structure present in the cytoplasm of nerve cell in the cyton. तो cyton के cytoplasm में ये Nissls granules ऐसे होते हैं. These are called as what? Nissls granules. They are altogether absent in the exoplasm. एक्सोप्लाज्म में ये क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं. तो ये अगर एक्सॉन है, इसके अंदर क्या है? एक्सोप्लाज्म है. तो इसमें ये क्या हो गए? एब्सेंट हो गए. चलो आगे चलते हैं. सिनैप्स इज, सिनैप्स किसको कहेंगे? तो देखो ये डायग्राम है सिनैप्स का. So the gap between two nerve endings. For example, this is the one axon and this is the one dendron. एक्सॉन और डेंड्रॉन के बीच में क्या गैप? दो डेंड्रॉन के बीच में क्या गैप? डेंड्रॉन और मसल के बीच में क्या गैप? तो उसको हम क्या कहते हैं? सिनैप्स. द जंक्शन वेयर टू नर्व एंडिंग्स दे मीट विथ ईच अदर एंड द ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स टेक्स प्लेस थ्रू दिस गैप. ये जो गैप होता है, दैट गैप इज कॉल्ड एज सिनैप्स. पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सिनैप्सिस. ये हमने 11वें में पढ़ा है इन द चैप्टर सेल डिवीजन. इन द टॉपिक मियोसिस, जाइगोटिन स्टेज में क्या होता है? सिनैप्सिस होता है. द एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट, इसको हम क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं. गैप बिटवीन टू नर्व एंडिंग्स, तो इसको हम कहते हैं सिनैप्स. द गैप बिटवीन टू नर्व एंडिंग्स, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सिनैप्स. सिनैप्स दो तरह के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों. सिनैप्स आर ऑफ टू टाइप्स. एक होता है इलेक्ट्रिकल सिनैप्स और दूसरा क्या होता है? केमिकल सिनैप्स. व्हेन द गैप इज टू मच लेस and the transmission of impulse takes place directly without the involvement of chemical neurotransmitter, that is called as electrical synapse. And when the gap is large, the transmission of nerve impulse takes place only after the involvement of neurotransmitter, that is called as chemical synapse. Is it clear? चलो, connective tissue around a nerve fascicula is, connective tissue around nerve fascicula. नर्व हम कब को किसको कहते हैं? द बंडल ऑफ अ नर्व फाइबर. बहुत सारे नर्व फाइबर दे कम टुगेदर and they are going to form a nerve fasciculi. Each and every nerve fasciculi is externally covered by means of an connective tissue. हर एक बंडल के अराउंड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है. तो ये रेड कलर का सर्कल क्या दिखा रहा है? नर्व फाइबर का बंडल दिखा रहा है, दैट इज कॉल्ड नर्व fasciculi. एंड अराउंड इज द ब्लैक कलर सर्कल इज शोइंग द कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग, दैट इज कॉल्ड एज एंडोनेरियम. When many such nerve fasciculi they come together, they are again covered by means of one more layer of connective tissue, that is called as perineurium. इसको हमने क्या कहा? Perineurium कहा. And when large number of such bundles they come together, they are externally covered by means of one more layer of connective tissue. तो ये ऐसे देखो, तो इससे आपको कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा. तो ये जो
सबसे बाहर का जो कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है इसको हम कहते हैं एपिन्यूरियम। इज इट क्लियर? तो हमको पूछा है कनेक्टिव टिश्यू अराउंड द नर्व फैसिकुलाई, तो नर्व फैसिकुलाई क्या है? ये बंडल है। तो नर्व फैसिकुलाई, ये जो लाल कलर का मैंने दिखाया रेड कलर का, ये क्या है? दिस इज अ नर्व फैसिकुलाई। नर्व फैसिकुलाई के अराउंड क्या है? एंडोन्यूरियम। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? एंडोन्यूरियम। चलो, diffuser nervous system is present in hydra, flatworm, cnidarians, both AB. Diffuser nervous system, the nervous system where the nerve cells or neurons, they are going to form a nerve net. They are going to form a nerve net where brain is altogether absent. इसमें ब्रेन नहीं होता है, तो such type of nervous system is called as a diffuser nervous system. तो वो कहाँ होती है? फ्लैट वर्म में क्या होता है? फ्लैट वर्म इज शोइंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ ब्रेन। ये क्या दिखाता है? प्रिमिटिव टाइप ऑफ ब्रेन दिखाता है। फ्रॉम द फाइलम प्लैटीहेल्मिंथस, फ्लैट वर्म, प्लैनेरिया एंड हाइड्रा एंड निडारिया। निडारिया क्या है? फाइलम है, इसमें से हाइड्रा है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? बोथ ए बी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? चलो, थर्ड लास्ट, सेकंड लास्ट है। Which of the following regulate oxygen, carbon dioxide, nutrient level around a neuron in a PNS? तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और न्यूट्रिएंट के लेवल को अराउंड न्यूरॉन कौन मेंटेन करता है, कौन रेगुलेट करता है? एपेंडाइमल सेल है, शॉन सेल है, एस्ट्रोसाइट है या सैटेलाइट सेल है? अभी देखो पीएनएस में कौन से सेल होते हैं? ग्लियल सेल। तो पीएनएस में एक सैटेलाइट सेल है और शॉन सेल है। तो एपेंडाइमल सेल कहाँ है? सीएनएस का कंपोनेंट है, तो ये तो गलत हो गया। एस्ट्रोसाइट क्या है, किधर है? सीएनएस में है, तो ये भी गलत हो गया। क्लियर? अभी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट है दो ही ग्लियल सेल के, एक शॉन सेल और एक सैटेलाइट सेल। शॉन सेल क्या करती है? दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस द माइलिन शीथ। और अभी लास्ट का नाम क्या बाकी रहा? सैटेलाइट सेल। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? सैटेलाइट सेल, दे आर गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्टिव सेल। दे आर गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्टिव सेल। तो इसका फंक्शन है ये, दे आर गोइंग टू रेगुलेट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट लेवल अराउंड न्यूरॉन इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली कवर्ड बाय न्यूरिलेमा? न्यूरिलेमा किसको कहते हैं? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल, दैट इज कॉल्ड एज न्यूरिलेमा। इज क्लियर? तो which of the following fiber is only covered with a neurolemma? It is not provided with the Schwann cell and a myelin sheath. तो मेडिलेटेड नर्व फाइबर में क्या होता है? माइलिन शीथ होता है। नॉन मेडिलेटेड नर्व फाइबर में माइलिन शीथ नहीं होता है, उसके अराउंड क्या होता है? एक्सॉन का जो सेंट्रल एक्सिस सिलेंडर है उसके अराउंड क्या होता है? देयर इज ओनली वन प्रोटेक्टिव कवरिंग, दैट इज द न्यूरिलेमा। तो नॉन मेडिलेटेड नर्व फाइबर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर, इसके अराउंड क्या होता है? सिर्फ न्यूरिलेमा होती है। द एक्सिस सिलेंडर, इसके अराउंड क्या है? ये सिर्फ क्या है? न्यूरिलेमा है। इज इट क्लियर? एंड इन ए मेडुलेटेड नर्व फाइबर क्या होता है? तो ये है हमारा माइलिन शीथ, ये ऐसे विच इज प्रोड्यूस बाय शॉन सेल, ये है माइलिन शीथ। एंड अराउंड द माइलिन शीथ क्या होता है? द सेकंड लेयर, दैट इज अ न्यूरिलेमा। ये न्यूरिलेमा है ऐसे। And these depressed regions are called as, or these constricted regions are called as what? Node of Ranvier. तो ये है न्यूरिलेमा। ये किसका पिक्चर है? तो दिस इज द पिक्चर ऑफ मेडिलेटेड nerve fiber. In a mediated nerve fiber, the transmission of impulse takes place at the faster rate, whereas the transmission of nerve impulse takes place at the slower rate in a non-mediated or non-myelinated nerve fiber. तो ये डायग्राम इसका है और मेडिलेटेड का क्या है? ये डायग्राम है. इज क्लियर? चलो समझ में आ रहा है. चलो, और ये क्या है? दीज आर द न्यूक्लियस ऑफ शॉन सेल. ये न्यूक्लियस है शॉन सेल के. इज क्लियर? एंड दिस इज द नोड ऑफ रैनवियर. नोड ऑफ रैनवियर. सॉल्टेटरी कंडक्शन पता है आपको? व्हेन द इंपल्स हैज गेट अ जंप फ्रॉम वन एंड ऑफ नोड ऑफ रैनवियर टू द अनदर एंड. तो ये जो जंप करता है इंपल्स, तो इसको कहते हैं हम सॉल्टेटरी कंडक्शन. ये भी याद रखो. तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? करेक्ट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली कवर्ड विथ न्यूरिलेमा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. लास्ट एमसीक्यू ऑफ द टुडेज लेक्चर.
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग विथ रिस्पेक्ट टू ग्लियल सेल? ग्लियल सेल जिसको हमने नाम क्या दिया था, न्यूरोग्लियल सेल भी कहा था इसको। तो इसका एक रॉन्ग फंक्शन इधर दिया है, वो हमको ढूंढना है। दे आर गोइंग टू सपोर्ट न्यूरॉन्स, करेक्ट, ये करेक्ट है। दिस वन इज द करेक्ट। दे प्रोवाइड नरिशमेंट, ये भी करेक्ट है। दे एक्ट एज अ पैकेजिंग सेल, ये भी करेक्ट है। तो दे आर लेस देन न्यूरॉन। तो ग्लियल सेल आर ऑलवेज मोर देन न्यूरॉन्स, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो देयरफॉर दिस इज योर करेक्ट आंसर। इज क्लियर? तो ये याद रखो, ग्लियल सेल्स आर ऑलवेज मोर देन नर्व सेल्स। इज क्लियर? चलो, तो थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करो आवर चैनल विदाउट अ फेल। Downside there is an one tab, subscribe our channel and press the bell icon for get a notification. Do like, share our video in your friend circle. सब्सक्राइब करने को ना भूलो, सब्सक्राइब करो and give your comments and one more thing that is too much important. Stay home, stay safe and always wear mask. Protect yourself and your family member from the COVID-19. Thank you for watching. Subscribe करो, like, comment, shares are important and tell your friends, share our video link.